بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرعون مصر کا خدا کیسے بنا۔ مصر کی تاریخ کا ایک ایسا بدبخت بادشاہ کہ جس نے اپنی سلطنت کو بچانے کے لیے ہزاروں معصوم بچوں کا قتل عام کیا، لیکن پھر بھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بچ نہ سکا۔ آخر کار اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم فرعون پر غالب آ گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا اور اس کو رہتی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ ویورز، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا اور مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون کیا کام کرتا تھا۔ مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے فرعون اپنی زندگی کیسے گزارا کرتا تھا اور بادشاہ بننے کے بعد اس نے خدائی کا دعویٰ کس طرح کیا اور کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو للکارا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کرنے کے لیے فرعون نے مصر کے لوگوں کو جانوروں جیسا کیوں بنا دیا تھا۔ اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویورز، مصر کی تاریخ میں کل 31 خاندان گزرے ہیں جنہوں نے مصر پر حکومت کی۔ ان 31 خاندانوں میں سے تقریباً 60 فرعونوں نے حکومت کی اور ان تمام تر فرعونوں میں سے سب سے بدبخت فرعون وہ فرعون تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا فرعون تھا کہ جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی کیا ہے۔ اس فرعون کا نام ولید بن مصعب یا مصعب بن ریان تھا اور بعض روایات کے مطابق اس کا نام قابوس تھا۔ فرعون کے دور میں ایک ایسی بدبخت قوم تھی کہ جس کو قبطی قوم کہا جاتا ہے۔ یہی وہ قوم تھی کہ جس نے فرعون کو اپنا خدا مانا اور فرعون کی پوجا کرنی شروع کی۔ فرعون اسی قوم کی نسل میں سے تھا۔ فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 400 سال کی عمر عطا فرمائی اور اس 400 سال کی عمر میں نہ تو یہ کبھی بیمار ہوا اور نہ ہی کبھی اس کے سر میں درد ہوا، اور اس 400 سال کے عرصے کے دوران کوئی بھی دشمن اس پر غالب نہ آیا۔ بعض مورخین نے یہ لکھا ہے کہ فرعون کو یہود و نصارہ قابوس اس وجہ سے کہا کرتے تھے کیونکہ اس کا چہرہ تانبے کی طرح چمکتا تھا۔ تو ویورز، اب بات کرتے ہیں کہ فرعون مصر کا بادشاہ کیسے بنا۔ کیا فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت کے اندر ملی تھی؟ تو اس کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ فرعون کو مصر کی بادشاہت وراثت میں نہیں ملی، بلکہ فرعون مصر کا بادشاہ بننے سے پہلے محنت مزدوری کیا کرتا تھا اور ایک عام انسان کی طرح ہی محنت مزدوری کر کے اپنی زندگی کا گزر بسر کیا کرتا تھا۔ ایک دن فرعون اس محنت مزدوری سے تنگ آ گیا اور بازار کی طرف نکل پڑا۔ وہاں پر اس کی ملاقات ایک شخص سے ہوئی جس کا نام تاریخ میں حامان کے نام سے ملتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے فرعون اور حامان کی ملاقات دوستی میں بدل گئی۔ چنانچہ اس وقت یہ دونوں بدبخت کام کی تلاش کے لیے شہر کی طرف روانہ ہو گئے، اور ان دنوں میں مصر کے شہر میں خربوزے کی خرید و فروخت اور بعض روایات کے مطابق تربوز کی خرید و فروخت کا کام عروج پر تھا۔ اس طرح یہ دونوں بدبخت فرعون اور حامان ایک خربوزے والے کے پاس گئے اور اس سے کام مانگنے لگے۔ اس وقت خربوزے والے نے فرعون اور حامان سے کہا کہ تم لوگ میرے خربوزے لے جاؤ اور بازار جا کر بیچ آؤ۔ اگر تم لوگوں نے میرے خربوزے بازار میں بیچ دیے تو میں تم دونوں کو کھانے کے لیے دوں گا۔ چنانچہ خربوزے والے کی یہ بات سن کر فرعون نے حامان سے کہا کہ تم یہیں رکو، میں یہ خربوزے لے جاتا ہوں اور بازار میں بیچتا ہوں۔ چنانچہ اس طرح حامان وہیں پر رک گیا اور فرعون وہ خربوزے لے کر بازار کی طرف چلا گیا۔ جب فرعون بازار میں پہنچا تو فرعون نے دکانداروں سے خربوزے خریدنے کا کہا۔ فرعون کی یہ بات سن کر دکانداروں نے فرعون سے کہا کہ ہمارے بازار کا یہ دستور ہے کہ ہم لوگ ادھار مال خریدتے ہیں اور بیچنے کے بعد اس کی رقم ادا کرتے ہیں۔ چنانچہ فرعون ان دکانداروں کی یہ بات سن کر کچھ دیر کے لیے خاموش رہا اور پھر اسی دستور کے مطابق سامان بیچ کر فرعون واپس چلا آیا اور واپس آ کر خربوزے کے مالک سے کہنے لگا کہ مجھے یہ کام اچھا نہیں لگا، اور اس طرح فرعون خربوزے والا کام چھوڑ کر وہاں سے چلا گیا۔ اب فرعون کو کسی ایسے کام کی تلاش تھی کہ جس کے ذریعے فرعون کو زیادہ سے زیادہ پیسے مل سکے اور وہ امیر بن سکے۔ چنانچہ ایک دن فرعون بادشاہ مصر کے دربار میں چلا گیا اور بادشاہ مصر کے سامنے اپنی درخواست پیش کی کہ میں بہت دور سے آیا ہوں اور یہاں پر کام کی تلاش میں آیا ہوں، اور میری حالت یہ ہے کہ میں کھانے پینے سے بھی عاجز ہوں۔ برائے مہربانی مجھے مصر کی اسی سلطنت کے کسی شہر میں بطور فدوی کوئی کام دے دیا جائے۔
चुनाचे उस वक्त मिस्र के बादशाह ने फिरौन की ये बात सुनकर फिरौन से कहा कि तुम कौन सा काम करना चाहते हो। बादशाह मिस्र की ये बात सुनकर फिरौन बादशाह से कहने लगा कि मुझे मिस्र के कब्रिस्तान की दरोही दे दी जाए और इसके बदले में बतौर फिदिया मैं कुछ रकम शाही खजाने में जमा करवाया करूँगा, और मैं चाहता हूँ कि मेरी इजाज़त के बगैर मिस्र के कब्रिस्तान में कोई भी अपना मुर्दा दफन ना करे। फिरौन की ये बात सुनकर उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फिरौन को मिस्र के कब्रिस्तान की दरोही दे दी। इस तरह मिस्र के कब्रिस्तान की दरोही मिलते ही फिरौन बहुत खुश हुआ और खुशी खुशी कब्रिस्तान के दरवाजे पर जाकर बैठ गया और खुशी खुशी इंतज़ार करने लगा कि अब कौन आता है जो अपने मुर्दे को इस कब्रिस्तान में दफन करेगा। चुनाचे कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि इसी साल मिस्र के अंदर एक खौफनाक वबा फैल गई, जिस वबा की वजह से मिस्र के बहुत सारे लोग मरना शुरू हो गए। चुनाचे फिरौन ने जब ये मंजर देखा तो फिरौन बहुत खुश हुआ और फिरौन ने हर मरने वाले शख्स के वारसों से एक एक सोने का दरहम लेना शुरू कर दिया और इस तरह फिरौन के पास कुछ अरसे में बहुत ज़्यादा माल और दौलत और रुपया पैसा जमा हो गया और फिरौन अमीर तरीन शख्स बन गया। इतना ज़्यादा माल और दौलत आने के बाद फिरौन ने ये सोचा कि क्यों न मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दरोही ले ली जाए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों को अपने अंडर कर लिया जाए। चुनाचे फिरौन ने ऐसा करने के लिए बादशाह के लोगों को कुछ पैसे दिए और मिस्र के तमाम कब्रिस्तानों की दरोही हासिल कर ली। इस तरह फिरौन मिस्र के कब्रिस्तानों की दरोही के जरिए बादशाह मिस्र के खजाने में बहुत सारा पैसा जमा करवाता, जिसको देखकर बादशाह मिस्र बहुत खुश होता। शाही खजाने में इतना माल और दौलत जमा करवाने की वजह से बादशाह मिस्र फिरौन को इज्जत देने लगा। चुनाचे इसी दौरान कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि इस वक्त मिस्र का वजीर मर गया और चूंकि फिरौन इस वक्त बादशाह मिस्र का बहुत ज़्यादा मुकर्रब और महबूब बंदा बन चुका था, लिहाजा बादशाह मिस्र ने फिरौन को ही मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इस तरह इक़्तिदार मिलते ही फिरौन इक़्तिदार के नशे में बदमस्त होकर फिरौन ने अपने दोस्त हामान को भी अपने पास बुला लिया। इस तरह फिरौन का दोस्त हामान जब फिरौन के पास आया तो फिरौन हामान से कहने लगा कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं खुदाई का दावा करूँ और तमाम मिस्र के लोग मेरी इबादत करें और मेरी पूजा करें और मुझको अपना सबसे बड़ा खुदा माने। फिरौन की ये बात सुनकर हामान एकदम हैरान हो गया और कुछ देर सोचने के बाद हामान फिरौन से कहने लगा कि अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो सबसे पहले मिस्र के तमाम लोगों को अपने हाथ में ले लो और उनके दिल में अपनी जगह बनाओ और उनके दिल में अपनी मोहब्बत पैदा करो। चुनाचे हामान की ये बात सुनकर फिरौन हामान से कहने लगा कि ऐसा करने के लिए हमें क्या करना चाहिए और किस तरह हम मिस्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बना सकते हैं, क्योंकि इस वक्त मिस्र के ज़्यादातर लोग हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। फिरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि इस काम को करने के लिए कोई तदबीर निकालो ताकि मैं खुदाई का दावा कर सकूं। चुनाचे हामान फिरौन की ये बात सुनकर कुछ दिनों तक सोचता रहा और कुछ दिन सोचने के बाद आखिरकार ये तदबीर निकाली कि बादशाह मिस्र के दरबार में एक दरख्वास्त दी जाए कि मैं ये चाहता हूँ कि मिस्र के तमाम लोगों की तमाम तर ख्वाहिशात 1 साल के लिए बिल्कुल मुफ्त में पूरी की जाएं और मिस्र के तमाम तर लोगों के तमाम तर अखराजात के पैसे मैं अपनी जेब से अदा करूँगा और मिस्र के अंदर ये ऐलान कर दिया जाए कि जिस शख्स को जो चीज़ भी चाहिए वो बिल्कुल मुफ्त में हासिल कर सकता है। चुनाचे फिरौन के पास पहले ही बहुत ज़्यादा मालो दौलत जमा हो चुका था। चुनाचे फिरौन ने हामान के कहने पर बादशाह मिस्र के दरबार में ये दरख्वास्त जमा करवा दी। चुनाचे उस वक्त के बादशाह मिस्र ने फिरौन की ये दरख्वास्त देखी और इसकी दरख्वास्त को कबूल कर लिया और 1 साल तक मिस्र के तमाम तर लोगों को इनकी ज़रूरियात ज़िंदगी की तमाम तर अशिया बिल्कुल मुफ्त में दी गई और 1 साल में होने वाले तमाम तर अखराजात की रकम फिरौन ने हामान के हाथों बादशाह मिस्र के ख़जाने में जमा करवा दी। चुनाचे फिरौन के इस अमल को देखकर मिस्र के लोग बहुत खुश हुए और फिरौन को एक अच्छा इंसान समझने लगे। इसके बाद फिरौन ने खुदाई का दावा करने के लिए और मिस्र के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने के लिए एक और चाल चली और मज़ीद 2 साल तक मिस्र के तमाम तर लोगों की तमाम तर ज़रूरियात को बिल्कुल फ्री में पूरा किया गया। चुनाचे फिरौन के इस अमल को देखते हुए मिस्र की तमाम तर रियाया फिरौन से बहुत खुश हुई और मिस्र के तमाम तर गरीबों ने फिरौन की तरक्की और कामयाबी के लिए बहुत सारी दुआएं की। ये वक्त था कि जब फिरौन का नसीब बदलने वाला था।
चुनाचे कुदरत इलाही से ऐसा हुआ कि उधर मिस्र की तमाम रियाया फिरौन के इस अमल से बहुत ज़्यादा खुश थी और इधर कुदरत इलाही से मिस्र का बादशाह मर गया। चुनाचे उस वक्त मरने वाले बादशाह का कोई भी वाली वारिस ना था जो इसके तख्त पर बैठता और इसकी बादशाहत को संभालता। इस तरह बादशाह मिस्र को दफन करने के बाद 3 दिन तक मिस्र के तमाम तर लोग इयादत करने के लिए मिस्र के दरबार में आते रहे और चौथे रोज मिस्र के तमाम तर लोग बादशाह मिस्र के दरबार में जमा हुए, जिनके अंदर बड़े बड़े काजी और मुफ्ती, उमरा, गुरबा, छोटे बड़े हर तरह के लोग शामिल थे। जब ये तमाम लोग बादशाह के दरबार में जमा हुए तो एक दूसरे से कहने लगे कि अब बादशाह मिस्र के तख्त पर किसको बिठाया जाए, क्योंकि बादशाह के बगैर मुल्क बेसरोपा हो चुका है। क्योंकि इस वक्त तमाम मिस्र के लोगों ने फिरौन की तरफ से ये अच्छाई देखी थी कि फिरौन ने मिस्र के तमाम तर लोगों की तमाम तर ज़रूरियात को 3 साल तक बिल्कुल मुफ्त में पूरा किया था। लिहाजा मिस्र के तमाम तर लोग फिरौन को एक बहुत ही अच्छा और नेक दिल इंसान समझते थे। व्यूअर्स, मिस्र के तमाम तर लोग फिरौन की ये खैर ख्वाही देखकर फिरौन से बहुत ज़्यादा खुश थे। चुनाचे तमाम लोगों की मुशावरत के बाद बिल आखिर फिरौन को मिस्र का बादशाह बना दिया गया और फिरौन बादशाही मिस्र के तख्त पर बैठ गया और इस तरह फिरौन पर किस्मत मेहरबान हुई और ये एक मजदूर से मिस्र का बादशाह बन गया। इस तरह फिरौन जब मिस्र के वजीर से मिस्र का बादशाह बना तो फिरौन ने अपने दोस्त हामान को मिस्र का वजीर मुकर्रर कर दिया। इस तरह फिरौन मिस्र का बादशाह बनते ही अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि पूरे मिस्र के अंदर हमारी बादशाही है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। उस वक्त फिरौन अपने दोस्त हामान से कहने लगा कि अब कोई ऐसी तदबीर निकालो कि जिसकी वजह से मैं खुदाई का दावा कर सकूं और मिस्र के तमाम तर लोग मुझे अपना खुदा माने और मेरी पूजा करें, क्योंकि उस वक्त मिस्र के ज़्यादातर लोग हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। लिहाजा हामान बदबख्त ने फिरौन को ये मशवरा दिया कि मिस्र के अंदर ये ऐलान कर दिया जाए कि जितने भी उलमा व फुज़ला दीन की तदरीस कर रहे हैं वो सब के सब दीन की दर्स व तदरीस को ख़त्म कर दें। हामान फिरौन से कहने लगा कि इस तरह लोगों के दरमियान दीन की तबलीग का सिलसिला ख़त्म कर दिया जाए ताकि लोग आहिस्ता आहिस्ता दीन से दूर हो जाएं और बिल्कुल अपने दीन को भूल जाएं और जानवरों जैसे बन जाएं और आइंदा आने वाली नस्ल जो पैदा होगी वो दीन से बेखबर और जानवर पैदा होगी। हामान फिरौन से कहने लगा कि जब लोग इस तरह जानवर बन जाएंगे तो तुम उस वक्त खुदाई का दावा कर देना। उस वक्त तमाम लोग तुमको अपना खुदा मानने लगेंगे और तुम्हारी पूजा शुरू कर देंगे। चुनाचे फिरौन ने हामान की ये बात सुनकर ऐसा ही किया और मिस्र के अंदर तमाम दीनी दरसगाहों को बंद कर दिया गया और आहिस्ता आहिस्ता लोग दीन से दूर होने लगे और आइंदा पैदा होने वाली नस्लें दीन से बेखबर और जानवर पैदा होने लगी। उस वक्त मिस्र के तमाम तर लोग दीन की दूरी की वजह से और तालीम की दूरी की वजह से जानवरों जैसे जानवर बन चुके थे। फिरौन ने जब ये मंजर देखा तो फिरौन बहुत खुश हुआ। उस वक्त फिरौन ने तमाम लोगों को बुत परस्त बनाने के लिए और ख़ुद को खुदा कहलवाने के लिए ये चाल चली कि तमाम लोग अपने अपने घरों में बुत बनाकर इसकी पूजा किया करें और इनके सामने सजदा किया करें। चुनाचे फिरौन के हुक्म के मुताबिक तमाम मिस्र के अंदर हर घर में बुत बनाए गए और हर घर में बुत परस्ती शुरू हो गई। जब फिरौन ने ये देखा कि मिस्र के तमाम तर लोग अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को भूल चुके हैं और दीन से दूर हो चुके हैं और बुत परस्ती के अंदर मुब्तला हो चुके हैं, उस वक्त फिरौन ने मिस्र के तमाम तर लोगों को एक मुकाम पर इकट्ठा किया और उनके सामने खुदाई का दावा कर दिया और इन तमाम तर लोगों को अपने सामने सजदा करने का हुक्म दिया। इस वक्त एक कुब्ती कौम जो कि मिस्र के अंदर तादाद में बहुत ज़्यादा थी, इन्होंने फिरौन को अपना खुदा तस्लीम कर लिया और अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को छोड़कर फिरौन की पूजा करने लगे। तो व्यूअर्स, इस तरह फिरौन एक मजदूर से मिस्र का वज़ीर बना और मिस्र का वज़ीर बनने के बाद मिस्र का बादशाह बना और मिस्र का बादशाह बनने के बाद उसने लोगों को जानवरों जैसा जानवर बनाया और उनके सामने अपनी खुदाई का दावा किया और मिस्र का झूठा खुदा बना। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें सीधे रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमेशा अपनी वहदानियत पर ईमान रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं इंशाअल्लाह मज़ीद दिलचस्प मालूमाती और इस्लामी वाक़यात आपके साथ शेयर करती रहूँगी। मेरी तरफ से आपको ढेर सारी दुआएं।
اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چلتی ہوں، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔